Let's begin with the NCERT at fingertips. The questions. A slit of width. Question number 61. A slit of width A is illuminated by a white light. The first minimum for red light is will fall at theta is equal to 30 degree when A will be. What is the formula? Distance of, they want nth minima. Distance of nth minima क्या होगा बताइए? nth मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगा? d sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्बडा, करेक्ट, फॉर nth मिनिमा, राइट ना? तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होगा ये? फॉर फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल टू d sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा, करेक्ट. बट d को उन्होंने a बोल दिया है, विड्थ को a बोल दिया है. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू लैम्बडा. लैम्बडा इज इक्वल टू कितना दिया है? 6.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 7. सो व्हाट इज a इज इक्वल टू 13 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 मीटर, करेक्ट ना? राइट. इज दैट इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 मीटर, और इज दैट इक्वल टू 1.3 माइक्रोमीटर, जिसे हम माइक्रोन भी कहते हैं या माइक्रोमीटर भी कहते हैं, एंड दैट इज द आंसर. सी इज द आंसर. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? 62, क्वेश्चन नंबर 62. यही फॉर्मूला भी आपने को यूज करते हुए जाना है. क्या दिया है यहाँ पे बताइए? प्यारे लाल, a parallel beam of light of wavelength 600 nanometer, lambda 600 nanometer, 6 into 10 raised to minus 7 meter, is incident, quiet please, normally on a slit of width d. If the distance between the slits and the screen, कौन सा distance है ये? Capital D is 0.8 meter, 0.8 meter, and the distance of the second order maximum from the center, distance of the second order maximum, हाँ second maxima, actually हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा nth maxima का, nth maxima and central maxima is equal to 2n plus 1 upon 2 times लेमड़ा, नहीं डिस्टेंस, हाँ w, दिस इज w. तो ये मुझे सेकंड वाला मैक्सिमा चाहिए, सेकंड मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 5/2w, बट दैट इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा बिग डी अपॉन स्मॉल डी, and this distance is given to be 1.5 15 mm, 15 into 10 raised to minus 3 meter, करेक्ट. इसमें अपने को लेमड़ा पता है, डी पता है, एंड कैपिटल स्मॉल डी फाइंड आउट करने को बोला है. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट? स्मॉल डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू? स्मॉल डी इज इक्वल टू 5/2 into lambda, that is 6 into 10 raised to minus 7 into capital D 8 into 10 raised to minus 1 divided by 15 into 10 raised to minus 3 is equal to 5 2 3s are and 5 3s are 15. So the answer is D is कितना आएगा यहाँ पे? 8 into 10 raised to minus 7 minus 1 minus 8, minus 8 plus 3 is minus 5. Is that okay? So D is equal to this much meter, or it will be like 80 into 10 raised to minus 6, that is 80 micrometer. Is that okay? तो that is my micrometer ना.
हाँ तो एक इधर जाता है तो 10 का पावर प्लस होता है और उधर जाता है तो 10 का पावर माइनस होता है, तो -1 -6 इज -4, करेक्ट है. सो दिस बी इज द आंसर देयर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे? The next question I'll go for. A screen is placed 50 centimeter from the single slit. A screen is placed 50 centimeter from the single slit. D is equal to 0.5 meter, which is illuminated with the light of wavelength lambda is equal to 6 into 10 raised to minus 7 meter. If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3 millimeter. Distance between third minima and first minima. देखिए ये होगा सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद यहां पर आएगा फर्स्ट मिनिमा और यहां पर आएगा थर्ड मिनिमा, तो उन्होंने ये डिस्टेंस दिया है. I'll have to find out what is this distance minus this distance. Did you understand that? Correct? So what is the distance m n1? By the way, nth मिनिमा का डिस्टेंस क्या होता है? m maxima. It will be n times w, correct? So what will be the distance between m n3 is equal to 3w and m n1 is equal to 1w. Therefore what is distance between n1 and n3? Here distance is equal to 2w, but that is equal to 2 times lambda capital D upon small d, and this distance is given to be 3 millimeter. So 3 into 10 raised to minus 7 meter, correct? मुझे पूछा गया है what is small d. So what is small d is equal to 2 lambda capital D upon 3 into 10 raised to minus 7. So small d is equal to 2 times what is lambda? 6 into 10 raised to minus 7 into capital D 5 into 10 raised to minus 1 divided by 3 into 10 raised to minus 7. कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए? So that will give me 3 to the 6 and 5 for the 20. So this is 20 into 10 raised to minus 8 meter. So that will be 2 into 10 raised to minus 7 आना चाहिए. ये क्या हो गया? एक्चुअली माइनस 7 माइनस, हाँ -7 कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे तो कितना आएगा? नहीं काय का अलग से 5 4 द 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. एक सेकेंड ना, 2 करेक्ट है. लैम्बडा इज 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, कैपिटल डी 0.5 मतलब ये रही है, एंड स्मॉल डी 3 मिलीमीटर है ना रे, तो मिलीमीटर को तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -3 लिखना पड़ेगा ना 10 रेज टू, तो -3, ये भी -3 है. अब क्या आएगा? ये -8 -5 and that is equal to 2 into 10 raised to minus 4 meter. So the answer is B. Is that clear to all? Yeah. अगला question. Question number 64. Consider sunlight incident on the slit of width 10 raised to 4 angstrom. The image seen through the slit shall be a fine sharp slit वगैरह वगैरह वगैरह. 4 ऑप्शंस दिए हैं. A parallel beam of light of wavelength, क्या दिया है wavelength यहाँ पे? लैम्बडा, gets diffracted by a single slit of width 0.3 millimeter. This is the slit width. D is equal to the angular position of the first minima of diffracted light. Angular position.
मतलब θ1 चाहिए उनको। अब अगर हम बात करें nth मिनिमा की, सपोज दिस इज nth मिनिमा nn and central maxima is capital M. If it is nth minima then this distance is, क्या होगा ये, अगर ये nth minima है तो nw, करेक्ट। और उसका अगर मुझे एंगुलर पोजीशन चाहिए तो व्हाट विल बी द एंगुलर पोजीशन फॉर दिस, और ये डिस्टेंस है d, तो ये कहलाएगा थीटा n। सो हाँ, सो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth minima is denoted by theta n is equal to nw upon d. This is n upon capital D lambda big D upon small d. So this is n lambda upon small d. सही है? So what is angular position of कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, is equal to theta 1 is equal to 1 lambda upon small d. What is lambda? 6 into 10 raised to minus 7 upon small d, it's 3 into 10 raised to minus 4, that is equal to 2 into 10 raised to minus 3 radian. Is this clear to all? So the answer is A. Is this clear? Alright. अगला question. I'll go to question number 68. 68. पढ़िए क्या दिया है? In Young's double slit experiment, the distance d between the slits S1 and S2. What is that distance d? D is equal to 1 millimeter. What should be the width of each slit? B, width of each slit, so as to obtain 10th maxima of double slit pattern within the central maximum of single slit pattern. दे दिया, बता दे मुझे। चलिए बताइए कैसे करेंगे। स्लिट, या so when I say double slit, they are talking about the interference, and single slit is diffraction. Is that clear? Diffraction. अच्छा, given क्या है अब बताइए मुझे। What should be the width of each slit? B, so as to obtain the slit experiment, the distance between the slits is S1. Okay, what should be the width of each slit to be? मतलब width जो होता है slit का वो A होता है. They are asking what is A in diffraction pattern, so as to obtain 10th maxima of double slit pattern. 10th maxima इसका 10th maxima मतलब 10W. Is this 10W? Within the central maximum of the single slit pattern should be equal to within the central maximum. Central maximum. Yes. समझ में आ गया क्या? यहां पर मुझे ये जो लिखना है विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब क्या होगा यहां पे? दैट शुड बी इज इक्वल टू 2W. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्या? एक मिनट, इसमें एंगुलर इंटरफेरेंस का ये थीटा 10 है और ये जो डिस्टेंस है वो होगा 10 टाइम्स W. ठीक है, वही चीज अगर मैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में दिखा दूं तो क्या बन जाएगा? डिफ्रैक्शन में यही चीज कैसे हो जाएगी? इट हैज टू लाई विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, करेक्ट ना? सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ये कुछ ऐसे होगा ना, ये तो ये सेंट्रल फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा, isn't it? और ये डिस्टेंस कितना होता है? दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 2W and
दिस इज आई वुड से θ2 बोल देता हूँ इसको मैं, यहाँ whatever θ1 बोल दूँ, जो भी है, एंड दिस इज d, 2 times θ1, correct. I'll call this as 2 times θ1. So this angle should be equal to this angle. या तो फिर मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ 10W फॉर इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 2W फॉर दिस. इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? अगर ऐसा होना है तो इसके लिए मुझे इक्वेट करना पड़ेगा ना इन दोनों को. विद इन एक्चुअली बोल रहे हैं वो, विद इन विद इन विद इन. तो 10W should lie within this. So 10W should be less than or equal to 2 times θ1. Sorry, 2W. Is that clear to you all? So समझ में आ गया? This is okay. 10th bright band should lie within this. Within मतलब this should be less than or equal to. ये distances अगर हम देखें तो 10W should be less than or equal to 2W. Is that okay? समझ में आ गया? अब मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. इंटरफेरेंस का क्या है फॉर्मूला? 10 आई कैन से दिस इज 2 5s. सो दिस इज 5 टाइम्स लैम्बडा बिग डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू, ये क्या होता है? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए होता है ये. अरे उस विड्थ को मैंने, जो डिफ्रैक्शन का विड्थ है उसको मैं डी नहीं, उसको ए बोल देता हूं. चलेगा? चलेगा? This is for interference and this is for diffraction. Any doubts about this? ये d जो होता है वो distance between the slits होता है, and this is the width of each slit. Is that understood? तो lambda big D दोनों gets cancelled. What do you get there? ये चला जाएगा, ये less than or equal to होना चाहिए, correct ना? So what should be the width of each slit? अब ये आएगा 5 upon d is 1 into 10 raised to minus 3 is less than or equal to lambda. Lambda is what? हाँ, lambda कैंसिल हो गया, सॉरी. 1 upon a. So अब a should be less than or equal to 1 into 10 raised to minus 3 upon 5. So a should be less than or equal to क्या होना चाहिए? 0.2 into 10 raised to minus 3 meter, 0.2 millimeter, 0.2 millimeter. A should be less than or equal to 0.2 millimeter. Is this clear? So what is the answer here? C. हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं था, दोनों कम, हाँ हाफ स्केल हाफ स्टार बोल सकते हैं, हाफ स्टार. दैट्स राइट. इजी था वैसे, इतना ज्यादा नहीं था डिफिकल्ट. सिर्फ इसको HSC में कभी हमने कंबाइन ही नहीं किया ना, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को कंबाइन कर दिया इधर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. क्या दिया है? एक सेकेंड करना है. A single slit is eliminated by single slit मतलब diffraction eliminated by the light of wavelength. This is lambda. The slit width is d. d बोलो a बोलो चलेगा, ठीक है ना? And the screen is placed capital D 1 meter away. The angular position of the 10th minimum. Angular position of 10th minimum. देखिए this is central minimum और 10th minimum, और मुझे θ10 चाहिए, है ना? θ10 के लिए, अभी θn के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था वो? इट विल बी, ये डिस्टेंस कितना होगा मिनिमम का? 10W, बराबर है. सो 10 NW, एक्चुअली ये आता है NW अपॉन कैपिटल D
that is n lambda upon small d. Correct? So they want it for 10th. It is 10 lambda is 6 into 10 raised to minus 7 upon small d is 10 raised to, correct. So this is 6 into 10 raised to minus 6 minus 3 radian. B is the answer. Is this clear to all? ये एकदम सिंपल है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर टाइप क्वेश्चंस दीज आर. अगला क्वेश्चन 70th क्वेश्चन. The parallel beam of light lambda is equal to 5 into 10 raised to minus 7 meter. It falls on the slit and resulting diffraction pattern is observed on the screen. D is equal to 1 meter away. It is observed that the first minima is at a distance of, so distance of from the central, so it is mn1 1w is equal to lambda का w ना, w fringe width is given to be 2.5 millimeter from the center of the screen. The width of the slit is a, या जिसको कभी हम d भी कहते हैं वो पूछा गया है. करेक्ट. Now w is equal to lambda capital D upon small d, that is equal to 2.5 into 10 raised to minus 3. Lambda is, मुझे d चाहिए ना, so d is equal to, this is 5 into 10 raised to minus 7 divided by 2.5 into 10 raised to minus 3. So this is 2 into 10 raised to minus 4 or 0.2 millimeter. Any doubts about that? Very easy. Is this clear? Formula substitution answer. These are the questions of the type formula substitution answer. अगला question. क्या दिया है? Fraunhofer diffraction. In Fraunhofer's diffraction at a single slit of width d with incident light of wavelength 5500 angstrom, the first minimum is observed at 30-degree angle. First minimum. So this is theta 1 minimum का, है ना, is equal to 30 degree. The first secondary maximum is observed at an angle. Maximum का theta 1 कितना होगा? सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उसको फर्स्ट मैक्सिमा भी कहते हैं या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा भी. ये जो है ये साइलेंट वर्ड है, क्योंकि इधर सेंट्रल जो होता है उसको प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं. सेंट्रल के बाद जो आएगा उसको सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमम, सेकेंडरी सेकंड मिनिमम, सेकेंडरी थर्ड मिनिमम. साइलेंट वर्ड है ये. इज दैट क्लियर टू ऑल? अब मुझे ये बताइए एंगुलर पोजीशन जो है मिनिमा का वो क्या होता है? व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा? अभी अभी हमने देखा थीटा n is equal to capital N lambda upon small d. yes or no? और मैक्सिमा का क्या होगा? मैक्सिमा का क्या होगा? दिस इज m n. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 2n plus 1 into lambda by 2, sorry, w by 2 ना, 2n plus 1 w by 2, n plus half, w by 2, and this is d and this is theta n. correct, जिसको मैं theta n dash बोलूंगा. so what is theta n dash for maxima? it is given by 2n plus 1 by 2 lambda dd कैंसल अपॉन d. सही है? करेक्ट ना? सो अब मुझे यहां पर ये थीटा 1 दिया गया है, थीटा n, थीटा कितना दिया है? ये 1 दिया है. सो फॉर n इज इक्वल टू 1 ये क्या बनेगा? थीटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी. आई गॉट दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6. मुझे ये पाई बाय 6 मिल गया. सो दिस लैम्बडा अपॉन डी आई विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. सो व्हाट विल बी थीटा n डैश इज इक्वल टू, मुझे n डैश नहीं 1 चाहिए ना, n इज इक्वल टू 1 इन दिस केस. सो थीटा 1 डैश
it has to be theta 1 dash is equal to 2 plus 1 3 by 2. So this will be 3 by 2 into pi by 6. 3 to the 6, so it will be pi by 4. करेक्ट ना? So अब अगर मुझे थीटा 1 डैश को एक्सप्रेस करना है तो आई थिंक इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2. ए इज द आंसर. करेक्ट ना? पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2. इज दैट क्लियर टू ऑल? 45 डिग्री का साइन होता है 1 अपॉन रूट 2, इसलिए हाफ स्टार या नो स्टार? अगला क्वेश्चन. इफ वी डोंट टेक द अप्रोक्सीमेशन, विदाउट अप्रोक्सीमेशन यही अगर हम सॉल्व करें विदाउट अप्रोक्सीमेशन, मतलब यही डायग्राम अगर मैं ड्रॉ कर लूं ऐसे यहाँ पे, तो दिस विल बी थीटा n एंड दिस इज n, व्हाट इज दैट, w, दिस इज स्मॉल d. अब साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी साइन ऑफ थीटा n? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा n रादर. यार नहीं यार, फिर साइन हाँ, लेकिन गड़बड़ आ रहा है आंसर में. A diffraction pattern is obtained using the beam of red light 700 hour. What happens if the red light is replaced by the blue light? वेवलेंथ रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग. वेवलेंथ अगर रिड्यूस कर लेते हैं तो डिफ्रैक्शन बैंड्स जो होते हैं, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन बैंड? W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. करेक्ट? सो इफ यू आर डिक्रीजिंग लैम्डा तो W कम हो जाएगा, सो बैंड्स विल बिकम नैरोअर. So the diffraction becomes narrower and crowded together. So that's what the answer is. इसके बाद मैं चाहूंगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 49 के लिए जाइए. What is question number 49? Question number 49. मैंने बोला था एट द टाइम ऑफ डिफ्रैक्शन आई विल सॉल्व इट. यही बोला था ना? इन द डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर इंफ्रारेड लाइट वुड बी, यही आपने को पूछा है कि ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट और रेड वाला लाइट, इसको अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द ग्रीन लाइट, ठीक है, तो यहां पर भी विग्योर, इन दिस केस ऑल्सो वी से विग्योर. तो ये क्या बनेगा? रेड वाला लाइट है यहाँ पे और ग्रीन वाला लाइट है यहाँ पे, तो वी आर रिड्यूसिंग लैम्बडा फ्रॉम 400 टू 700. करेक्ट? क्या लैम्बडा? लैम्बडा इज, हाँ एक सेकेंड, नहीं तो तुम यू यूज सम मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम फॉर ऑब्जर्विंग दैट. नो फेक नोट डिटेक्टर में इंफ्रारेड यूज करते हैं. हाँ नहीं, लेकिन उसको डिटेक्ट तो करते हैं ना हम लोग. यू यूज सम मीडियम. करेक्ट ना? हाँ, तो लेट मी टॉक अबाउट दिस नाउ. क्या आएगा ये? लैम्बडा बिग डी अपॉन स्मॉल डी. वंस अगेन रेड से हम अगर ग्रीन की तरफ जा रहे हैं तो लैम्बडा को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा. आई मीन ब्रेंडविड्थ, फ्रिंज विड्थ. हाँ, रेड से ग्रीन जा रहे हैं. The first maxima for infrared light would be at the same place where first maxima. We have to compare here the maximas ना. Maximas को अगर हमको compare करना है तो W for red light and W for green light, मतलब
which is actually comparable with lambda for red light and lambda for green light. Lambda for red light is greater, therefore this is greater. Is this clear? So farther from the central maxima, from the center, than from the first maxima of the green light. Correct. So C is the correct answer. Did you understand this explanation? क्या आपको explanation समझ में आ गया? Sure. Go back. Okay. सेम एक्सप्लेनेशन होगा इसका, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको क्या है ये. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस थिंग. विल गो टू द इंटरफेरेंस, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस का जो मैंने दिया था ना आपको नोट्स, वहां पे मैं जा रहा हूं. फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज द नया स्टाइल में किया गया वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है. ठीक है, उसको आसान किया हुआ एक्सपेरिमेंट है. लेट्स टॉक अबाउट द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे ये हमने बात करी, दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ बैंड्स. उसके बाद मैंने आपको ये नोट्स भेजे हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू ऑल. देखिए ये है फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का सेटअप. ओके, इसमें ये एक सिंप्लीफाइड स्केच है, रे डायग्राम फॉर द कोहेरेंट, फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस इक्वली ब्राइट विच आर क्लोज टू इट. तो यहाँ पर सिंगल सोर्स है एंड दिस इज द बाइप्रिज्म. ये बाइप्रिज्म है और इस रीजन से अपने को यहाँ पर दिस इज द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस जहाँ पर आईपीस रखा जाता है. तो एट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल बेंच. मैंने आपको ऑप्टिकल बेंच के बारे में बताया था, शायद यहाँ पे मैंने स्केच भी बनाया था. करेक्ट करेक्ट. तो उसका एक सिंप्लीफाइड स्केच ये रहा, दिस इज द सोर्स, और इसी सोर्स के आजू बाजू मिलते हैं S1 एंड S2. ये है बाइप्रिज्म, ये है लेंस और यह है आईपीस. लेंस का क्या काम है मैंने उस टाइम आपको बोला था कि बाद में बताऊंगा, वो टाइम अभी आ गया है. ठीक है. सो वी कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट जिसमें ये जो सोर्स है, इस सोर्स के मुझे दो इमेजेस मिलते हैं. दिस इज S1 एंड S2. ये दो इमेजेस मिलते हैं और वो दो इमेजेस के मुझे वहां पर क्या मिलते हैं, वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. समझ में आ रहा है? देखिए ना, मैंने यहां पर आपको बता दिया ना, दिस इज द सिंगल सोर्स. इस सोर्स का ये पहला इमेज मिल जाता है. दीज आर द वर्चुअल इमेजेस आई वुड से. बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर, दिस इज द प्रिज्म जिसका एंगल होता है 179 डिग्री. ये बताया था शायद मैंने आपको. देखिए ना, द बाइप्रिज्म इज अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल ग्रेटर देन 179 डिग्री. अब 179 डिग्री से भी ज्यादा मतलब 179.5 डिग्री अगर हम बोलते हैं, तो ये जो इधर का एंगल होगा वो कितना होगा रे? लेस देन 0.5. लेस देन 0.5 ऑन आइदर साइड. करेक्ट. समझ में आ गया ना? तो दिस इज एज इफ प्लेन. अब इसके दो इमेजेस यहां पर मिल गए क्योंकि लाइट इसकी वजह से जा रहा है, लेकिन वो दिख रहा है ऐसे कि लाइट यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है. सो दीज आर द टू कोहेरेंट सोर्सेस. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? हाँ, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब ये एक्चुअली वर्चुअल सोर्सेस है क्योंकि उसको हमने पीछे की तरफ ट्रेस करके ऑब्टेन किया. करेक्ट. बिटवीन द टू सोर्सेस. करेक्ट ना? हाँ. नहीं, मीन नहीं, मुझे एक्चुअली इसकी मदद से ये, और सुनो मेरी बात, और यहां पर एक चीज जरूरी होती है कि भाई आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस ऑल्सो. ये डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल डी. दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों सोर्सेस वर्चुअल सोर्सेस है जो कि है ही नहीं, और जो है नहीं उसके बीच में डिस्टेंस मुझे मेजर करना है. ये सबसे बड़ी दिक्कत थी वहां पे, बता रहा हूं मैं. नहीं, फॉर्मूले से भी नहीं आता है. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्बडा. हमको यहां पर मेजरमेंट ऑफ लैम्बडा वी हैव टू डू. ठीक है. वी फाइंड आउट व्हाट इज लैम्बडा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो एक्चुअली W इज इक्वल टू लैम्बडा बिग डी अपॉन स्मॉल डी. So what is lambda is equal to
डब्ल्यू डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी कैसे मेजर करते हैं? कुछ नहीं, इस सोर्स से ये जो आईपीस हम रखते हैं उसका मेजर डायरेक्ट मीटर स्केल से मेजर कर लो इसका। सो दिस इज टेकन केयर ऑफ। एनी डाउट्स अबाउट दैट? आईपीस क्या होता है? आईपीस होता है जैसे हम माइक्रोमीटर को वगैरह, हाँ, जो आंख लगा के ऐसे देखते हैं ना उसको, उसके अंदर एक क्रॉस वायर होता है, ठीक है। तो अपने को ये लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए दीज आर द 3 मेजरमेंट्स टू बी डन। पहला मेजरमेंट कैपिटल डी का हो गया, दूसरा मेजरमेंट डब्ल्यू का है। डब्ल्यू का मेजरमेंट कैसे करते हैं देखते हैं, यहां पर एक एक काम एक एक करते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डी जो पहला था, तो हम डायरेक्टली उसको मीटर स्केल से यूज करेंगे। वी विल यूज द मीटर स्केल फॉर दैट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ बैंडविड्थ जिसको एक्स या डब्ल्यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके जब हम देखेंगे आईपीस के थ्रू, तो वो पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। आईपीस विथ क्रॉस वायर, आईपीस विथ सिंगल स्लिट, आईपीस विथ 2 slits. आईपीस हैज द मेजरमेंट, उसके ऊपर माइक्रोमीटर जो होता है ना वैसे होता है आईपीस। आर यू अंडरस्टैंड? बता रहा हूं ना मैं, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ओनली। तो आईपीस जो होता है, आईपीस मतलब क्या? ये कहां गया रे? दिस इज आईपीस। तो यहां पर आप लोग अपनी आंख लगा के उसको देखोगे, हाँ, स्क्रीन, दिस विल रिप्लेस द स्क्रीन एक्चुअली। आईपीस विल रिप्लेस द स्क्रीन, इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि वो आईपीस कहां रखेंगे हम लोग? द आईपीस इज केप्ट इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। ये रहा, दिस इज द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आईपीस के ऊपर क्रॉस वायर जो होता है और वहां पर मेजरमेंट के लिए अरेंजमेंट भी होता है, मतलब मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, वर्नियर स्केल के जैसा। इज दैट क्लियर टू ऑल? इन दैट वे। और आईपीस का क्रॉस वायर पहले हम इसके साथ मैच करेंगे, एक ब्राइट बैंड के साथ, फिर दूसरे ब्राइट बैंड के साथ, फिर तीसरे ब्राइट बैंड के साथ, एंड विल टेक द डिफरेंस ऑफ दीज रीडिंग्स एंड विल टेक द एवरेज ऑफ ऑल दोज रीडिंग्स। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो दैट वे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे देखिए, मुझे मेरा जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला आई हैव रिटन हियर? यहाँ पर x1, x2, x3 these are the readings, then I'll take the difference of the 2 consecutive readings और उन सबका एवरेज ले लूंगा। तो दिस इज हाउ आई विल फाइंड आउट द बैंडविड्थ। इज दिस क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, आईपीस के थ्रू अगर हम एक सिंगल स्लिट देखेंगे तो अपने को एक ऐसा दिखेगा। यू विल नेवर एवर सी, मोबाइल रख, यू विल नेवर एवर सी 2 slits like this। अब यहां पर मुझे वो डिस्टेंस मेजर करना है, आई हैव टू मेजर द डिस्टेंस, लेकिन तो उसके लिए अपने को लेंस यूज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक सिंगल स्लिट के उसको 2 इमेजेस मिलेंगे आपको, यू विल गेट 2 इमेजेस, लेकिन उसका डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो वी विल यूज सम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो लेंस का होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। एंड फॉर दैट पर्पस क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, दिस इज डी। अब लेंस के दो, यहां पर डी है, मतलब इसी प्लेन में तुम्हारा सोर्स है, इसी प्लेन में सोर्स है, मतलब ये है S1 और ये है S2 और यहां पर एक्चुअली S होगा। यस और नो? इज दैट क्लियर? राइट, दिस डिस्टेंस इज D। और अगर आई, और यहां पर होता है स्क्रीन मतलब दिस इज द प्लेन ऑफ द आईपीस, दिस इज द प्लेन ऑफ द आईपीस। इज दैट क्लियर? ये आईपीस का प्लेन है। तो this distance is x and this distance is y. Can I say that this is the object and this is the diminished image? I will call this as diminished image. I'll call this as diminished image. Okay? And वहीं पर अगर मैं दूसरे जगह पर ये रखूंगा, यहां पर अगर मैं दूसरे जगह पर ये रखूंगा, तो this images, they are going to get magnified. So we say these are the magnified images. I'll use a very simple property here कि image distance upon object distance
image distance upon object distance is equal to image height upon object height. ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ये. आपको याद दिला दूं मैं कि अगर ये एक लेंस है, यहां से इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसका अगर एक हम इमेज यहां पर मिलता है आपको दूसरे साइड में, तो ये जो दो ट्रायंगल्स होते हैं, these two triangles, they are what do you say, similar triangles. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u कहते हैं, एंड दिस इज द इमेज डिस्टेंस जिसे हम v कहते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्ट हाइट, I'll call this as ho, and this is the image height, I'll call this as hi. Do you all agree with this? तो ऑब्जेक्ट image distance I'll call v, object distance is u, image height I'll call this as hi, and this is ho, something like this. I'll use this property. तो अगर मैं फर्स्ट केस में उसको यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? What am I going to get there? What is the image distance? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज डिस्टेंस इज y, so this will give me y upon x. Y upon x is equal to image height, this is the image का height, d1 upon d. I'll call this as equation number 1. Did you understand that? अब ऐसा ही एक और एक पोजीशन होगा इधर, मतलब आई विल जस्ट इंटरचेंज दिस x एंड y के वैल्यूज. तो लेंस को मुझे ऐसे दो पोजीशंस में रखना पड़ता है, व्हेन इट इज क्लोज टू द आईपीस एंड व्हेन इट इज क्लोज टू द स्लिट्स, सो दैट आई विल इंटरचेंज दिस डिस्टेंसेस. मतलब y बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और x बन जाएगा इमेज डिस्टेंस. सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर? x अपॉन y is equal to d2 upon d. I'll call this as equation 2. मुझे xy से कोई लेना देना नहीं है. What I want is small d. तो इनको दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, मुझे क्या मिल जाएगा? 1 is equal to d1 d2 upon d square, and therefore what is d is equal to square root of d1 into d2. So to know this small d, what I need to do is find out the distance between the magnified images and diminished images. Is this clear to you all? Any doubts about that? I'll have to find out. तो ये small direct d small d नहीं ये करना पड़ेगा. To know this, I have to calculate d1 and d2, and I'll use the simple formula d is equal to square root of d1 into d2. Is that clear? So once I know this small d, तो मुझे बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है. ये रहा फॉर्मूला. इसमें से फ्रिंज विड्थ मैं क्रॉस वायर की मदद से फाइंड आउट करूंगा, और इस कैलकुलेशन से मुझे d मिलेगा. इस तरह से आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज लैम्बडा. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट. दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अब ये मैंने आपको फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया है, और ये अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इन फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, the two positions of lens give separation between the slits as 16 centimeter and 9 centimeter respectively. 16 centimeter is the distance between the magnified images. आप इसको d1 बोलो, इसको d2 बोलो, क्या फर्क पड़ेगा? 16 centimeter. And d2 is the distance of separation between the diminished images. So what will be? D is equal to square root of d1 into d2, that is equal to 12 centimeter. The actual distance of separation is 12 centimeter. कैसे? 16 into 9 144. 144 का स्क्वायर रूट इज 12. हमारे टाइम पे 12 था, अब महंगाई से बदल गया होगा. A, is this clear to you all? So the answer is A. ये समझ में आ गया? Any doubts about this? Any doubts about this? Okay. अगला question. The next question I'll go for. ये कंडीशन है whenever we are using the telescope. तो अगर ये एक टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप से आने वाली जो लाइट होती है उससे हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं.
वी आर ट्राइंग टू सी टू ऑब्जेक्ट्स, तुझं लक्ष नाही आहे बरं का. वी आर ट्राइंग टू सी टू ऑब्जेक्ट्स. तो दो ऑब्जेक्ट्स पहले अपने को लगता है ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, फिर उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया तो फिर लगता है नहीं ये दो ऑब्जेक्ट से, और अच्छे से रिजॉल्व कर लिया. रिजॉल्व करते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है उसको हम सेपरेट आउट कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको कल बताया कि अगर दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न्स एक साथ मिक्स हो रहे हैं तो आपको वो सिंगल ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़े डिफरेंट अलग होने लगते हैं तब आपको लगता है कि हाँ भाई ये अलग अलग है. तो ये अलग अलग है ऐसा कब लगने शुरू होता है, when the central maxima of one is coinciding with the first minima of the other. This was Rayleigh's criteria. और यही Rayleigh's criteria यहाँ पे दिया गया है कि central maxima of one is in line with the first minima of the other and vice versa. Is this clear to all? अब इस distance को हम I dash कहते हैं. This is the objective of the telescope. Telescope आपको पता है, टेलीस्कोप पता है आपको, ऐसा जो होता है दिस इज कॉल्ड एज आईपीस, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है, करेक्ट ना. यहाँ पर हम आंख लगा के देखते हैं, इस तरह का होता है ना टेलीस्कोप, बराबर है क्या, इजंट इट. ओके, तो यहां पर जब हम उसको देखेंगे ये उसके इमेजेस है एंड दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा. नाउ जैसे ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वैसे ये होगा लिमिट ऑफ एंगुलर रिजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. जब तक ये चीजें एक दूसरे से अलग नहीं होती तब तक ये रिजोल्व नहीं होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दिस ओके? ठीक है. तो हम इस थीटा को क्या बोलेंगे, विच थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर सेपरेशन. थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर separation. We call this as angular separation. And there was a scientist जिसका नाम था एरी. एरी जिसने ये आई डैश कैलकुलेट कर लिया. भाई कितना था ये आई डैश? अकॉर्डिंग टू द एरीज कैलकुलेशन दिस डिस्टेंस आई डैश which is the least separation distance for the just resolved case. This is least separation distance for just resolved case. हाँ तो that is 1.22 lambda. It depends upon this lambda. तो इसने एरी ने ये कैलकुलेट किया था. Is that clear? This is the least distance of separation. अगर ये I dash मुझे पता है and if I say that this distance is capital D, then can you tell me what is this angular separation theta is equal to? The angular separation theta is equal to I dash upon D, or in that case what is this going to be? Theta is equal to 1.22 lambda upon D. Is this clear to you all? Now this is the limit of resolution. We call this as limit of resolution. We call this as limit of resolution and we denote it as theta. Is this clear to you all? Is that okay? Is that okay? Limit of resolution या इसको बोलते हैं least angular separation. Least angular separation. And इसका जो reciprocal होता है, the reciprocal of this least angular separation is called as resolving power. We call this as resolving power. Is this clear to all? This is about the telescope. और इसको हमने क्या अप्लाई किया? Which concept have we used here? Rayleigh's criteria. Rayleigh's criteria. Is that clear? बाकी सब आपको बता दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. Is this clear to all? Alright. Now these things are given here in the textbook. यहाँ पर ये सारी चीजें दी है उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर. ये रहा थीटा, ये रहा एरी, उसने फाइंड आउट किया 1.22 लैम्बडा, और ये है रिजॉल्विंग पावर. सो इज दैट क्लियर? समझे? सो व्हाट शुड बी द, हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, इफ आई वांट टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, अगर मुझे रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करना है तो डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी इंक्रीज्ड.
ऑब्जेक्टिव का डायमीटर ही को हम कहते हैं एपर्चर. व्हाट वी कॉल दिस एज? टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, इट्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का ही मतलब होता है एपर्चर. द एपर्चर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन हियर. नहीं पता है मुझे. एक क्वेश्चन अभी इतना एक्सप्लेन कर रहा है तो मैं ऐसे ही छोड़ूंगा थोड़ी. एक क्वेश्चन तो करूंगा ना सॉल्व. इतना पूरा रामायण बता दिया, तू बोल रहा है अब युद्ध नहीं करना है. पगला गए हो का? नहीं. द एंगुलर रिजोल्यूशन मतलब थीटा. द एंगुलर रिजोल्यूशन थीटा इज आस्क्ड देयर of 10 centimeter diameter. Diameter is 10 centimeter, मतलब d is equal to 10 centimeter at a wavelength of lambda. So what is the formula here? The formula says theta is equal to 1 point, बोलिए, upon d. कभी इसको d theta कहते हैं, कभी थीटा कहते हैं. Is this okay? Let me just substitute it. It's just formula substitution answer. क्या आएगा? 1.22 into 5 into 10 raised to minus 7 divided by capital D is 1 into 10 raised to minus 1 ना? नहीं, हाँ correct, minus 1. So this will become 5 to the 10, 61, 6.1 into 10 raised to minus 6. The angular resolution is of the order of, इसका ऑर्डर पूछा है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड याद है आपको? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? आपको क्या लिखना होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसमें क्या करना होता है? नहीं नहीं, एक नंबर होता है एंड दैट शुड बी लाइंग बिटवीन दिस एंड दैट. हाँ तो बताइए अभी. हाँ 0.1 to 5. It should be 1 to 0.5 to 1 होना चाहिए ना ये. So what is the answer here? ऑर्डर अगर पूछा है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? मुझे कल बता दीजिएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. यस, -4 आएगा, -6 आएगा. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड याद है आपको? p into 10 raised to n, where p is a number which lies between something something and something something. Can you tell me what is that? It has to lie between 0.1 to 5. Is this clear? 5 से ज्यादा होगा तो दोबारा वो इस फॉर्म में उसको रखना पड़ेगा. तो I have to write this as 0.61 into 10 raised to minus 5. So order of magnitude is actually 10 raised to minus 5, which will be the correct answer. यहाँ पर order क्या होगा इसका? What will be the order here? Order of magnitude is given by 10 raised to minus 5. ये ऑप्शन सही ऑप्शन होता. दिखे हुए ऑप्शन में अगर मुझे सिर्फ 10 का पावर ही उसको दिखाना है तो ये डी आंसर होगा, which will exactly the most correct answer. I would call this as the most correct answer. Is this okay? Any doubts about this? So shall I stop here?